شہدا اور غازی ہمارا فخر ہیں۔ شہدا کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج کا امن اور آزادی ان شہدا کی قربانیوں کے مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا GHQ میں تقریب سے خطاب۔ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسران کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا۔ ISPR کا کہنا ہے افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانوی وزیر لارڈ واجد خان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے اوورسیز کنونشن میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا اوورسیز پاکستان اور برطانیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ لارڈ واجد خان وفاقی وزیر داخلہ سے بھی ملے۔ محسن نقوی بولے پاکستان برطانیہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی عظیم قربانیاں اقوام عالم کے لیے مثال ہیں۔ واحد پاکستان ہے جس کے ہر طبقے نے دہشت گردی کے خلاف لازوال قربانیاں دیں۔ اقوام عالم اس جنگ میں بلا تاخیر پاکستان کا ساتھ دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایران میں قتل 8 پاکستانیوں کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ 5 افراد کا تعلق خانقاہ شریف، 2 کا احمد پور شرقیہ اور 1 کا تعلق شجاع آباد سے تھا۔ میتیں خصوصی طیارے سے بہاولپور ایئرپورٹ لائی گئیں۔ تمام مزدوروں کو ایران کے صوبے سیستان میں ہفتے کو قتل کیا گیا تھا۔ ہائیبرڈ ماڈل جس کی PTI بات کر رہے ہیں انہوں نے کبھی یہ کھل کے نہیں کہا تھا۔ میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا کہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، تو کوئی لگی ٹپٹی کوئی لکا چھپا اگر نہیں گل کرتا پے گا نا۔ پاکستان میں ہائیبرڈ ماڈل ہے۔ ملک آگے لے جانے کے لیے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سب کی پارٹنرشپ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اسمبلی میں بیٹھی آدھی PTI نورا ہو چکی، بانی کو اپنی حمایت میں بندے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ بتایا نواز شریف صرف علاج کے لیے لندن آئے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم نے وزیر اعلیٰ KP پر من گھڑت الزامات لگائے۔ علی امین گنڈاپور نے مائنز اینڈ منرلز بل کے کسی کاغذ پر دستخط نہیں کیے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں مائنز اینڈ منرلز بل پر وفاق کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر اپنے بیان کا ثبوت دیں ورنہ قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل صوبے کے مفاد کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کا دن۔ سلمان اکرم راجہ نے جیل حکام کو رہنماؤں کی فہرست بھجوا دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، احمد خان بچر اور زرتاج گل کا نام شامل۔ بانی PTI کی بہنیں بھی آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گی۔ تحریک انصاف کے کارکن حیدر سعید کی درخواست سے ضمانت منظور۔ ریکارڈ پیش نہ کرنے پر انسداد دہشت گردی عدالت کا پولیس پر شدید اظہار برہمی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کہا ریکارڈ پیش کرنے پر اسلام آباد پولیس نے ہمیشہ بددیانتی دکھائی۔ جس طرح ریاست کے تحفظات ہوتے ہیں عوام کے بھی تحفظات ہیں۔ جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ عالمی بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد 20 اپریل کو واشنگٹن پہنچے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور گورنر اسٹیٹ بینک سمیت اہم افسران وفد میں شامل ہوں گے۔ وزیر خزانہ کی قیادت میں پاکستانی وفد IMF اور ورلڈ بینک کے عہدیداروں سے ملے گا۔ وزیر خزانہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان پر عائد ٹیرف پر بھی بات کریں گے۔ NA 213 عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن۔ پیپلز پارٹی کی صبا تالپور اور اپوزیشن کے امیدوار لال ملہی میں مقابلہ۔ یہ نشست نواب یوسف تالپور کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔
चारों सूबे मिलकर मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक या दो सूबे आगे बाकी पीछे रह जाएं तो तरक्की नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़रूरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने IMF समेत हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान के बुरे वक्तों का साथी है। ज़रूरी ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। खुशी है, मेरिट पर तलबा को भेजा जा रहा है। बलूचिस्तान का कोटा 10% ज्यादा रखा है। पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल है। मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी जमातों, एस्टेब्लिशमेंट सबकी पार्टनरशिप है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। बोले, असेंबली में बैठे आधी PTI के लोग नोरा हो चुके। बानी को अपनी हिमायत में बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बताया, नवाज शरीफ सिर्फ इलाज के लिए लंदन आए हैं। जिसका जो क्रेडिट है उसको दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि फौज ने और चीफ ने करना है, तो फिर ये जो नौनिहाल जमहूरियत है एक्सपायर्ड जनाजों की, दैट इंक्लूड एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो फिर इसका क्या काम। मईशत की बेहतरी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। सब काम आर्मी चीफ नहीं करने हैं तो फिर नाम निहाल जमहूरियत का क्या काम। जो भी पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बनेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में क्राउड मुकम्मल तौर पर चार्ज था। आर्मी चीफ के लिए भरपूर नारे लगाए गए। बानी PTI जेल में है और मौजूदा क़यादत मजे में है। वो बाहर आ जाएं तो मौजूदा आधी क़यादत नजर नहीं आएगी। इस वक्त सूबे में बदअमनी है। उलमाए किराम को, सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से इलाकों पर तो अब हुकूमत नाम की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है, कोई रिट हुकूमत की मौजूद नहीं है। KP में बेअमनी है, हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। लोग मुसल्ला गिरोहों से परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च किया जाएगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मुत्तहदा अरब इमारात का दौरा। UAE के वजीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर बातचीत। UAE क़यादत का मुसल्लह अफवाज की इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियों का एतराफ़। कराची के इलाके गुलजार हिजरी की रिहायशी बच्ची का पुरस्कार अगवा और कत्ल। सवेरा नामी बच्ची की लाश गुज्जर नाले से मिली। मंगल के रोज बच्ची गली में खेलते हुए लापता हुई। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सच्चल में दर्ज कराई। CCTV फुटेज से पता चला बच्ची को एक औरत अगवा करके ले गई। बुध की शाम पुलिस ने इत्तला दी कि बच्ची की लाश नाले से मिली है। अहले खाना का थाना गुलजार हिजरी के सामने बच्ची की लाश रखकर एहतजाज पुलिस ने खत्म कराया। कश्मीर से अगवा किए गए 3 कस्टम्स एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। मगवियों को 2 अप्रैल को इंडस हाईवे कस्टम चौकी से अगवा किया गया था। रिहाई पाने वालों में इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शामिल हैं। रुझान में पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। उमरानी गैंग के 2 डाकू मुकाबले में हलाक, 2 शदीद जख्मी। रिकॉर्ड याफ्ता हलाक मुलजिमान पुलिस को कई साल से मतलूब थे। TPO राजनपुर का कहना है कच्चा जमाल में एक जामे हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन में आसिफ नामी शहरी को बाजियाब कराया। पुलिस ने डाकुओं की पनाहगाहों को आग लगा दी। हैदराबाद के करीब लोनी कोट में पंजाब जाने वाले ट्रेलर पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग। CTT पुलिस की फौरी कार्रवाई। मुसल्ला गिरोह को पीछे धकेल दिया। जाए वकुआ से डेटोनेटर, दस्ती बम, पेट्रोल बम और बारूदी मवाद बरामद। मुलजिमान फरार, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। सिंध के एतराजात के बावजूद TP लिंक कैनाल से पानी लिया जा रहा है। गुज़श्ता रात पंजाब हुकूमत ने 1000 क्यूसेक पानी लेने के सिलसिले को बढ़ाया।
सिंध हुकूमत का वफाक और इरसा को एहतजाजी मरासला। दरियाए सिंध से 3800 क्यूसेक पानी लिया जा रहा है। पंजाब झेलम चनाब जोन को अपना पानी देने के बजाय दरियाए सिंध से दे रहा है। सूबाई वजीर जाम खान शोरो का कहना है वफाक इरसा सिंध से नाइंसाफियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने गंदम काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। 5 लाख किसान पैकेज से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त माली मदद फराहम की जाएगी। इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट दी जाएगी। गंदम को मौसमी असरात से बचाने के लिए 4 माह की मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। आइंदा बजट में रिलीफ की तैयारी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए 3 तजावीज़ तैयार। एफबीआर ज़राए का कहना है आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रिलीफ पर आला 27 इजलास हुआ। सिर्फ निचले स्लैब तब्दील किए जाएंगे। माहाना 50,000 रुपए से जायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट। रिलीफ में 6 लाख सालाना की बजाय जायद रकम को पहली स्लैब में शामिल किया जाएगा। बजट में ज्यादा तनख्वाहदार के लिए किसी रिलीफ की तजवीज़ नहीं। निशात होंडाई पर गुमराहकुन इश्तिहार पर 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। मसाबकती कमीशन का कहना है होंडाई ने टूसॉन गाड़ी की तारुफी कीमत सिर्फ 24 घंटे में बढ़ा दी। गाड़ी की लॉन्च पर सार्फिन को डिस्काउंट से मुतालिक गुमराह किया। सार्फिन को कम कीमत का झांसा दिया गया। बयानतदारी से इश्तिहार देना जरूरी है वरना सख्त कार्रवाई होगी। Pakistan has proudly served UN peacekeeping for over 6 decades. We remain committed to the values of the UN Charter. The Security Council must also uphold its commitments towards a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute. अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। पायदार अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब का गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम वफ्द के हमरा 17 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा सी पैक के तहत $25 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। सदर शी जिनपिंग हमसाया मुल्कों से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तमाम पड़ोसियों के साथ मिलकर बेहतर मुस्तकबिल की तश्कील चाहते हैं। अमेरिका के वफाकी जज का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। कहा हुक्म अदूली पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। तारिकीन वतन से मुतालिक फैसले की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई। वफाकी जज जेम्स बॉसबर्ग ने वेनेजुएला के तारिकीन वतन को एल सल्वाडोर भेजने से रोका था। ट्रंप इंतजामिया ने पुराने जंगी कानून का सहारा लेकर तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया था। और पीएसएल का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा लगता है पिंडी में शीशे टूटेंगे। मुल्तान तगड़ी पोजीशन में है। कामरान अकमल ने राय दी पिंडी में 200 रन चेस होते हैं। अदाकार इमाद इरफानी बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। कहा बासित अली और कामरान अकमल का बड़ा फैन हूँ। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया।